एक्चुअली इसको ना वो भी क्या नाउ द लाइव We are live now. Yes, yes. Okay. So good evening and namaskar, everybody. Welcome to another enthralling session of Doon Citizens Online. We as a community have come a long way in such a short amount of time, gaining an exponential amount of members along the way. Our session today revolves around antibiotics, their uses, misuses, and subsequent consequences. Widespread use of antibiotics promotes the spread of antibiotic resistance, and smart use of antibiotics is the key to controlling its spread. With all that said, our guests today include Dr. Puneet Tyagi, Associate Director, Department of Pulmonary Medicine at Max Super Speciality Hospital, Dehradun. Our next guest, Dr. Shantanu Belwal, is a Senior Consultant, Department of Critical Care Medicine at Super Speciality Max Super Speciality Hospital. Welcome, Dr. Tyagi and Dr. Belwal. Thank you. Hello. Thank you. Namaskar, sir. So, welcome, both of you. So, getting back to basics, the use of antibiotic is a common occurrence in our lives, in most of our lives as adults, including me actually. मैं सबसे ज़्यादा लेती हूँ सब antibiotics off the counter, but not all of us are actually very privy to the actual mechanics behind them. Could you please explain to us what actually the term antibiotic stands for? What is an antibiotic? We just take it कि antibiotic खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे. होता क्या antibiotic? Shantanu, you can start. Sir, can you hear me? No. Yeah, Dr. So I can hear clearly. I'll answer that question. So as you clearly said, there are many misconceptions about antibiotic, and you already mentioned that आप भी बहुत antibiotic लेते हो. So maybe आज के इस डिस्कशन से हम कुछ बातें क्लेरिफाई कर पाएं और शायद कुछ प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चेंज कर. Basic is what is antibiotic? What are antibiotics? So antibiotics are those group of medicines which are directed toward a specific pathogen like bacteria. So antibiotics work against bacteria. There are antimicrobial medications which work exclusive against bacteria, not for any other kind of. We have different kind of microbes in with us, like fungus, like viruses and bacteria and parasites. So antibiotics work only on bacterial bacteria exclusively. So their use should be limited only to bacterial infection, not for common cold, sore throat, flu, and other ailments which we commonly use, as we use in throat infection, which is not definitely not for a sore throat or a viral infection. I think my connection is interrupted. So this is kind of basic about antibiotics. I think Dr. Belwal's internet is not. Yeah, now am I clear now? So I think there's some problem with the internet at your end. Yeah. And now is it clear? Am I audible? It is clear, I think. Yeah, it's much clearer. Yes, you are audible, sir. Okay, so as I was telling you that antibiotics are a group of antimicrobials which are used only for bacterial agents. जैसा कि आपने बताया, हम use common day practice में हो गया कि which is wrong. So in further discussion, Dr. Tyagi, I think my internet is getting interrupted. It's better if you can throw some light on it. हाँ, मेरे ख्याल से भी डॉक्टर शांतनु ने जो बोला कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, they mainly work against bacteria. So antibiotics are a group of medications जिनको कि हम जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सर बट एक एज ए लेमैन हमको कैसे पता, जैसे अभी इंडिया में आई डोंट नो अबाउट बाहर का, बट इंडिया में ऐसा है कि अब थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, मेरे को ही ले लीजिए, आई वुड नॉट गो टू अ डॉक्टर अगर गले में कांटे लग रहे हैं या थ्रोट इन्फेक्शन जैसा फीलिंग आ रहा है, थोड़ा फीवर है, आई वुड गो टू अ केमिस्ट बाय लाइक ऑफ द काउंटर एजेक्स ले लेती हूँ मैं.
Once upon a time मुझे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी and it worked. So I don't even know that this is bacterial infection or normal virus or just a throat infection. I should take this antibiotic or not. I just take it. So as a layman हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ये throat infection जो है ये bacterial है या नहीं है? So if you could just हाँ tell us that. एक्चुअल में अगर एक्चुअल में मैं बात करूं तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है जो आप कह रहे हो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस बेसिकली, और ये इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही है इनफैक्ट, और सब लोग ऐसे ही। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का एक और प्रॉब्लम ये है कि दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, तो कोई भी जाकर के कोई भी एंटीबायोटिक जो है अपनी इच्छा से खरीद सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम देखिए बात करें अभी इस वक्त, तो जितने भी आपने कहा कि आपका जब गला खराब होता है, गले में खराश होती है तो या हल्का फीवर आता है तो आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने की बात है, ये जितने भी आपको वायरल ये जो इन्फेक्शन गला खराब होता है, ये 70 to 75% दे आर बिकॉज ऑफ वायरस। ठीक है, अब अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे या नहीं लेंगे, ये तभी भी अपने आप से विद टाइम वो चला जाएगा। तो वी हैव टू हैव अ पेशेंस। और मतलब इसमें वायरल इन्फेक्शंस में आपको आइडियली कुछ नहीं करना होता है, यू जस्ट हैव टू टेक अ क्रोसिन। अगर आपको बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, बाकी आपको सिर्फ स्टीम लेना है और आपको गार्गल्स करने हैं, एंड विद इन 3-4-5 days द इन्फेक्शन विल गो। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस इन माई ओपीडी। व्हाट हैपेंस इज कि जैसे अब मैं आप ही को पेशेंट मान लेता हूँ, तो आपका गला खराब हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, उसके बाद में आपको लगा कि 2-3 दिन एक बाद भी ठीक नहीं हुआ, देन यू गो टू अ डॉक्टर, आप किसी और आप मेरे पास आए, तो उसके बाद में अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी एक जानने की चीज ये है कि हमारा वी आर ऑलवेज इन हरी, इंडिया में ना वी आर इन हरी। तो वी डोंट अंडरस्टैंड वी डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि देखिए अब एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इट विल टेक 5 to 7 days फॉर रिकवरी। ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर मुझे आज से सिम्टम स्टार्ट हुए और मैंने दवा नहीं ली, अगले दिन भी मुझे बुखार आ गया या कुछ गला खराब रहा, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे तो तबीयत ठीक नहीं हो रही है और आई हैव टू टेक समथिंग। तो वो हम हरी में करते हैं और वो एंटीबायोटिक्स हम अननेसेसरीली लेते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम अननेसेसरीली लेते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होता है। और बाय द टाइम आप डॉक्टर के पास, अगर मेरे पास आप 4थे-5वें दिन दिखाने भी आए, तो दैट इज द टाइम व्हेन द योर जो वायरल इन्फेक्शन है वो ठीक होने की कगार पर होता है। तो वो धीरे धीरे अगले 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ सालों में मैंने कब अपने यूआरटीआई के लिए एंटीबायोटिक लिया होगा। कई बार वो 10-10, 15-15 दिन भी चला, बट आई जस्ट टेक स्टीम इनहेलेशन या ज्यादा क्रोसिन अगर कोई बॉडी एक वगैरह है, अदरवाइज मैं वो भी नहीं लेता हूँ। तो antibiotics should not be used indiscriminately at all without doctor's prescription. yes उसमें मैं आपको एक सिंपल सा, देखिए ये हमारे यहाँ पे वैसे भी लेजिस्लेशन नहीं है कोई ना, मतलब कि आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हो उसको, कुछ तो भी आप सर खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे यूरोप में अगर आप जाएंगे वहां पर, हाँ वहां पर अगर आप जैसे यूरोप में आप जाएंगे तो वहां पर प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपको इन्फेक्शन है थ्रोट का, दे विल टेक थ्रोट स्वाब। वेलकम बैक। तो वो एक आपका थ्रोट स्वाब ले लेंगे बेसिकली। थ्रोट स्वाब लेने के बाद में वो आपको 3 दिन के बाद बुलाएंगे। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो उसमें नहीं करता है तो वो एंटीबायोटिक्स आपको नहीं देते हैं। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स वो 3 दिन के बाद वैसे इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज को जानने की जरूरत है कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से गला खराब है, तो उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है नहीं, रैशनल कोई है नहीं लेने का। Thank you, sir. It was very well explained. Welcome back, Dr. Belwal. Yeah, I'm sorry. Actually, one call came and my internet got interrupted. That's okay. With the doctors, it's always there. Yes. Yes, sir. So coming to you again, I mean, just if you could, we just spoke about the antibiotics thing which you had started, and Dr. Tyagi actually explained it very well. He took on from you because your net was not working. Yeah. So if you could just explain
what are the common side effects? Like हम लोग तो ले लेते हैं, but what are the side effects related to such instances कि हमने ये off the counter ले लिया, वो ले लिया, तो हमें अगर आप explain करेंगे कि इसके side effects होते क्या हैं actually, जिससे डर के मारे हम ना लें, because यहाँ डर चलता है इंडिया में। जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे अभी के टाइम में देख भी रहे हैं हम, डर से काफी चीजें हम करने लगे हैं, चेंज कर लिए हमने प्रैक्टिस काफी कुछ बेटर हो जाए उसके चलते हुए। सो एंटीबायोटिक्स किसी भी काइंड ऑफ समझ सकते हैं आप केमिकल चीजें हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जितने भी हैं, दे आर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक एंड सम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगस, अल्टीमेटली दे आर फॉरेन बॉडी फॉर ह्यूमन, फॉर अस. So they have their own effects and side effects. So any drug which have its effect will definitely going to have a side effect. So the common side effect of antibiotics, which we are worried of, which we should be worried of rather, is simple as diarrhea, as simple as allergic consequences. It can cause rashes, stomach upset. It can cause patient to have nausea also, which is very common effect of it. And हमें ऐसा लगता है कि शायद ये disease का course है उस दौरान पर, जिसकी वजह से ये सारे side effect होते हैं. We fail to understand that these antibiotics, ये antibiotics अपना खुद ही side effect दिखा रहे हैं, जिसको हम commonly या काफी late में जाके समझ पाते हैं. ये तो बहुत कॉमन और वी कैन से कि ये ठीक है, मतलब मैनेजेबल काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बट जो इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड ऑल बी वेरी ऑफ इज रेजिस्टेंस. आप एंटीबायोटिक लेते हैं, साइड इफेक्ट कॉमन डायरिया, रैश, जैसे एंटीबायोटिक कोर्स खत्म होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, बट जो कुछ जैसे डॉक्टर खुद बोला कि ये एंटीबायोटिक काम नहीं करता. So it's the common side effects are these: diarrhea, rash, stomach upset, nausea, loss of appetite, and can have skin reactions. And but serious side effect like resistance, which comes later in phase, can cause its problem on मतलब humans पर भी, और उसके बाद society पर भी एक बहुत बड़ा impact cause कर सकता है. So these are kind of side effects which in general we can say about it. Okay. So you just mentioned the term antibiotic resistance. Yes. What do you mean by antibiotic resistance? और ये develop, I mean, how does अब मेरे अंदर antibiotic resistance कैसे आ जाएगा? And इसके consequences actually क्या होते हैं? Yes. If you could explain antibiotic resistance. Right. Yeah. So अभी मैं I will tell you how antibiotic resistance develops or why antibiotic resistance develops, and Dr. Puneet Tyagi have a very good example of how it ultimately develops. He explains to many patients in front when we discuss with the patient also. He will also put his ideas. So antibiotic resistance होता क्या है, मैं सिर्फ इसको बताऊंगा. Antibiotic resistance क्या आता है कि जब किसी भी डिजीज के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसका एक जुडिशियस यूज कर रहे हैं इन एडिक्वेट डोज, इन एडिक्वेट रूट और एडिक्वेट ड्यूरेशन तक, सो इफेक्टिवली बैक्टीरिया को किल करने में या उसकी पॉपुलेशन को ग्रोथ को जीरो करने में सक्सेसफुल रहती है. तो ये एंटीबायोटिक के यूज हैं जो कि राइट यूज है. अब अगर कोई एंटीबायोटिक मिस यूज या ओवर यूज की जाती है फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ ड्यूरेशन, सो वो बैक्टीरिया उसके लिए इम्यून हो जाते हैं. So it's a kind of evolution process. Antibiotic resistance is a evolution process for a bacteria. They have learned to live with those antibiotics which used to kill them earlier. So ये एक antibiotic resistance mechanism develop करते हैं. जो antibiotics हम 1970 के जमाने में ऐसे वंडर समझते थे, या 1930s when antibiotics were discovered. Sir Alexander Fleming discovered penicillin, and after 10 years of its discovery, it started using in society. It caused wonder. It was golden era of antibiotic. Now those antibiotics are useless for nowadays. Bacteria are we can't treat diseases with those antibiotics which were used to be in 1970s या उससे पहले जो भी एंटीबायोटिक चलती थी. इस वक्त पर नीड है हायर एंटीबायोटिक की, हायर अच्छी डिस्कवरीज की. So this kind of antibiotic resistance is a global threat, and it is not in India. India is the capital of drug resistance nowadays, but it is worldwide. It is causing problems, right? So small infections, people are getting they are getting incurable because of this resistance. And how antibiotic resistance developed, Dr. Tyagi will tell you, because he has very good example which he used to tell us or to patient also. So Dr. Tyagi. वो बैक्टीरिया कॉलोनी वाला जो आप बताते हैं. म्यूट है आपका माइक, म्यूट है.
मैं आपके पास वापस आऊंगी आफ्टर his explanation, Dr. Belwal, since you are associated with ICU. So I would like to actually continue this discussion about antibiotic resistance in ICU. Definitely. So first over to Dr. Tyagi. Yes. देखिए, मैं ना इसको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका अपना एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, जब हम प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर रहे, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो बैक्टीरिया है एक वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, ठीक है। तो वो भी अपने उसका भी अपना इंस्टिंक्ट है कि मुझे उससे सरवाइव करना है। तो अब वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो बहुत रैपिडली अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने जेनेटिक्स को चेंज कर सकता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करेंगी या और मैकेनिज्म से बैक्टीरिया को मारती हैं। तो वो अपने अंदर इस तरह के चेंजेस लाता है कि वो उसको ना कर पाए। तो अब एक बैक्टीरिया जो होता है वो करीब 20 मिनट्स के अंदर 1 के 2 हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इस तरह से जो है वो उसकी बढ़ती रहती है। तो वो लाखों बैक्टीरिया हैं। अब उनमें से एक, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से अगर एक भी बैक्टीरिया आपका एंटीबायोटिक से लड़ना सीख गया तो अल्टीमेटली बाकी तो सब मर जाएंगे, बट ये वाला जो बैक्टीरिया है ये आपका ग्रो कर जाएगा एंड अल्टीमेटली वो एंटीबायोटिक फिर उसमें असर करना बंद कर देगी। दूसरी चीज ये है कि जब हम अननेसेसरी, एक मैं यहाँ बताना चाहूंगा एक बात को, बल्कि आपको शायद नहीं पता हो, आपको भी आश्चर्य हो जानकर, कि आपकी बॉडी में जितना आपका अपना डीएनए है उससे कहीं ज्यादा डीएनए आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का है, ठीक है। हमारी बॉडी में, हमारे स्किन पर, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं बेसिकली। तो इट इज लाइक अ यूनिवर्स, सी। तो उसको, वो सारे जितने भी बैक्टीरियाज है ना, ये सारे हमें बेसिकली हेल्प करते हैं और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उस सब चीजों में हेल्प करते हैं। दे आर कॉमन सेल्स बेसिकली, वो हमारे साथ रहते हैं बेसिकली। तो जब हम अननेसेसरली एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो ये लोग भी उस एंटीबायोटिक से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं एक तरीके से। दे ऑल्सो लर्न टू फाइट द एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में जो बैक्टीरिया, खराब वाले बैक्टीरिया हैं, जब वो हमें अटैक करते हैं तो ये वो जो रेजिस्टेंस इन्होंने सीखा है, दे कैन पास दैट इंफॉर्मेशन टू दोज अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, सो दे ऑल्सो गेट रेजिस्टेंस। तो ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है जो कि यस 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 जी, इट वाज एक्चुअली वेरी वेल एक्सप्लेन सर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम लोग सब बोलते तो हैं, बट समझ आज आया एक्चुअली। देयर इज अ क्वेश्चन सर फ्रॉम आवर व्यूअर सारिका। शी वांट्स टू नो कि अल्कोहल का क्या, हाउ डज इट इम्पैक्ट एंटीबायोटिक्स, बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं वी वोंट ड्रिंक दीस डेज, हम एंटीबायोटिक्स पे हैं। तो उसका एक्चुअली ये मिथ है या व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस? नहीं, इसमें देखिए कई सारे जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका कि उसके साथ में इंटरेक्शन भी होता है अल्कोहल के साथ में, जैसे मेट्रोनिडाजोल और ये सारी चीजें हैं, तो उनका एक्चुअल में उसके साथ में वो है। दूसरा, अल्कोहल, जो अल्कोहलिक्स हैं, जो मतलब, और जैसे इसमें हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गए, टीबी वाले दवाएं जो एटीटी हैं, वो भी एक तरीके के एंटीबायोटिक्स ही हैं। तो जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, और अगर जो पेशेंट है वो साथ में अल्कोहल भी ले रहा है तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, और हमारे जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो सब बढ़ सकते हैं। वी कैन, दीज पेशेंट्स कैन डेवलप जॉन्डिस एंड ऑल, जैसा कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के साथ में अक्सर देखा जाता है। तो हम उनको हमेशा बताते हैं कि भाई आप अल्कोहल जो है आप अगर ले रहे हैं तो आप बंद करिए। So this is more the reason कि हम अपने आप एंटीबायोटिक्स ना लें, बिकॉज वी डोंट नो कि किस एंटीबायोटिक्स के साथ अल्कोहल जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स इट, दैट इज करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर त्यागी। एंड सर, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर बेलवाल, जैसे आईसीयू में लोग कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस होती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट इज दैट? इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन मी दैट, बिकॉज ये चीजें हम सुनते बहुत है बट एक्चुअली समझ नहीं आती। जी, मैं इस बात पर हाईलाइट करता हूँ। सो जैसा कि आपने कंसर्न किया कि आईसीयू में रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की बात है, एंड इट्स रियली वेरी ट्रू। किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पेशेंट हैं या जो सबसे सिक हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट्स इन आईसीयू, एंड ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90% ऑफ दीज पेशेंट, जो ये 80 से 90% के करीब पेशेंट है, ये किसी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रहे होते हैं उस समय पर।
मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीयू में पेशेंट तब आता है जब वो ऑलरेडी ट्रीटेड हो चुका होता है हर जगह पर, या किसी हॉस्पिटल से या कम्युनिटी में ऑलरेडी मेडिसिन ले रखा होता है या ओवर काउंटर यूज कर रखा है मेडिसिन का। लाइक फॉर सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। अब एक पेशेंट है जो कि लेट्स से 60-70 ईयर ओल्ड मेल, जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुए किसी नॉर्मल ड्यूरेशन में। नॉर्मल कोर्स क्या होता है कि अपने पास के किसी, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, नॉर्मल केमिस्ट के पास गए, उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, 5-6 डेज कोर्स लिया, उसके बाद वो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर अगेन थोड़ा बहुत शेवी की तरह फिर किसी हॉस्पिटल में गया, फिर उसको कुछ और एंटीबायोटिक मिली एंड कहा कि ठीक है आपको 5-6 डेज तक देखते हैं ड्यूरेशन, एंड देन ही बिकेम सीरियसली इल एंड गॉट एडमिटेड। तो इस ड्यूरेशन पर अगर तो हमें उसके ड्रग हिस्ट्री के बारे में पता है, लाइक अगर मेरे पास एक पेशेंट 12-15 डेज के बाद आ रहा है आईसीयू में, जबकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में या घर पर रह पाए, उस कंडीशन में ऑलरेडी हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको ऑलरेडी एंटीबायोटिक कोर्स मिल चुका है यूजुअली। सो लाइक सिंपल एंटीबायोटिक्स लाइक ऑगमेंटिन की बात हमने शुरू की थी इनिशियली। ऑगमेंटिन इज अ ग्रुप ऑफ वेरी काइंड ऑफ better, it's a very good antibiotic but basic, one of the basic antibiotic which जो पहले हम नॉर्मल हर पेशेंट क्योर हो जाता था ऑगमेंटिन से ऑलमोस्ट। अब क्या हुआ, अगर वो उसको ऑगमेंटिन ऑलरेडी मिल चुकी है, 2-3 कोर्सेज हो चुकी हैं और उसके ऊपर उसको आईवी एंटीबायोटिक्स मिल चुकी हैं, और ऐसा पेशेंट अगर आईसीयू में आता है, पेशेंट की कोमोर्बिडिटीज होती है ना, बहुत सारी लंग डिजीजेस हैं ऑलरेडी, उसको सीओपीडी, निमोनिया, कुछ सीरियस इलनेसेस चल रही हैं, जिसकी वजह से उसको बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन सप्रेस नहीं हो पाए इन एंटीबायोटिक्स एंड ही रिक्वायर्ड मोर इंटेंस मॉनिटरिंग एंड इंटेंस ट्रीटमेंट। तो जब तक ये पेशेंट हमारे पास आता है, उस समय पर उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे ऑलरेडी हैव बीन exposed to those antibiotics which were curative, and now he does not respond to these antibiotics. So इस टाइम में हमें कुछ रिजर्व मेडिकेशन चलानी पड़ती हैं, नॉट एट फर्स्ट इंस्टेंस, वी आल्सो ट्राई फॉर 24-48 आवर। अगर वो कुछ हायर मेडिकेशन से काम अगर रिस्पॉन्ड कर जाता है तो हम उसको वही एंटीबायोटिक्स लाते हैं, आईवी ड्रग्स देते हैं। लेकिन अगर वो ये कोर्स 5-6 डेज या एटलीस्ट 48 आवर्स तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हमें हायर मेडिकेशन चलानी पड़ती है। अब ये एक पेशेंट की बात है, लेट सपोज अगर आईसीयू में 10 या 12 पेशेंट एंड एवरीबॉडी गोज थ्रू द सेम कोर्स, तो अल्टीमेटली 60-70% पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी एंडेड अप इन गेटिंग हायर मेडिकेशंस। सो इन हायर मेडिकेशंस का, जैसे फर्स्ट इनिशियल टॉक्स में हमने कहा था, कोई भी एंटीबायोटिक यूज या ओवर यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहता है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। सो अगर एंटीबायोटिक यूज किसी एक इंस्टेंस पर ज्यादा हो रहा है किसी भी वार्ड में या आईसीयू में, और अगर वो मेडिकेशन यूज हायर मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस मेडिकेशन से वो सारे पेशेंट ही लगभग या सेट ऑफ पेशेंट गेट, अगर 5-7 डेज में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, इंप्रूव नहीं हुआ, तो आफ्टर 5-7 डेज most of those antibiotics become useless and we have to step up our antibiotic, obviously based on culture reports and other things. तो आईसीयू में जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास पेशेंट कहाँ से आया है, किस कंडीशन में पहुंचा है। जो आप टर्शरी सेंटर्स देखेंगे जो बहुत ऑलमोस्ट जो रिसीव करते हैं जगह जगह से पेशेंट, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं ऑलमोस्ट स्टेट से भी और बाहर से भी आते हैं, जहाँ पर इनएप्रोप्रिएट नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक चल चुका है या मेनी एंटीबायोटिक्स हो चुके, तो ऑलरेडी दे आर रेजिस्टेंट टू दोज एंटीबायोटिक विच जो कि हम देना चाहते हैं उनको, तो हमारा हायर एंटीबायोटिक यूज हो जाता है। दीज जो भी ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें एक तो डिजीज क्योर करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके अपने टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो हायर यूज ऑफ हायर एंटीबायोटिक्स, रेस्ट्रिक्टिव एंटीबायोटिक्स होते हैं, बट दिस हैज बिकम द नॉर्म नाउ। मेनी पेशेंट हम जो अलग अलग जहां से अगर किसी स्पेसिफिक सेंटर से आया है, तो हमें पता होता है कि इसमें हमको अभी से ही अगर हायर एंटीबायोटिक नहीं चलाया तो शायद हमारे पास 48 आवर्स भी नहीं रहेंगे। तो थोड़ा क्लिनिकल जजमेंट रहता है उस समय पर, बट हाँ ये इस बात में कोई भी दो राय या कोई भी बिल्कुल सच्चाई है कि आईसीयू इज ए प्लेस जहां पर रेजिस्टेंट डेवलप भी होता है, जहां पर रेजिस्टेंस को फाइट भी करना पड़ता है, और हाँ यहाँ पर हायर ड्रग्स यूज करनी पड़ती है। So this is kind of a situation. Thank you, Dr. Belwal. It was actually very well explained. Okay, so antibiotics से ही हम we can move into microbiology. So if you could please explain the use of concept. I mean, what is actually microbial flora? मतलब सुनते हैं हम ये terms, but actually अगर डॉक्टर त्यागी अगर आप बता पाए इसके बारे में। हाँ, मैं एक्चुअली इसका मैंने जिक्र अभी किया था
कि जो हमारी बॉडी में, मैंने बताया था आपको कि बैक्टीरियल डीएनए कहीं ज्यादा है हमारे अपने डीएनए से। तो हमारी बॉडी, हम मतलब एक तरीके का ना बहुत बड़ा, मतलब एक यूनिवर्स टाइप सिस्टम है कि हमारी स्किन पर भी बैक्टीरियाज रहते हैं, हमारे माउथ पे, हमारा जो माउथ है उसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, और हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये सारे के सारे बैक्टीरियाज जो है ना, ये सब हमारे कॉमन सेल्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं और ये हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं करती हमारे लिए, वो ये बैक्टीरिया करते हैं। तो जब भी कभी हम अपने अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो उससे हमारा जो बॉडी का जो माइक्रोबायोम है वो भी मरता है बेसिकली, और उसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट्स और वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरियाज जो है वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट का जो फ्लोरा है वो पूरा का पूरा ऑल्टर हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि फिर लोग बोलते हैं कि आप लैक्टोबैसिलस ले लीजिए, ठीक है, तो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स वो सब हम लेते हैं, उसको वो किस लिए होता है कि उसको रेस्टोर करने के लिए लेते हैं। तो माइक्रोबायोम जो शरीर के लिए है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स का जो है मिसयूज ना करें, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर माइक्रोबायोम। सर एक्चुअली जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब लोग, तो जनरली वी आर प्रिस्क्राइब्ड साथ में बी कॉम्प्लेक्स। सो इज इट जस्ट अ मिथ या जरूरत है बी कॉम्प्लेक्स हर एंटीबायोटिक के साथ? नहीं 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 नहीं, बी कॉम्प्लेक्स का कोई एज सच जरूरत नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जब लेते हैं हम उसके। आप मेरे को वेरी कॉमन एग्जांपल, मैं एक एंटीबायोटिक ऑफ द काउंटर लूंगी तो मैं साथ में बी कॉम्प्लेक्स ले लूंगी कि एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स लेना जरूरी है। नहीं नहीं So, नहीं, नहीं। मतलब ये क्यों होता है मुझे? नहीं, देखिए ये प्रैक्टिस अगर आप ऐसे देखेंगे, अभी भी हमारे पास जितने पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, दे विल से कि डॉक्टर साहब कुछ विटामिन दे दीजिए। तो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप उस विटामिन में डेफिशिएंट नहीं है और आप उसको लेते भी हैं, तो आपकी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती है, वो एक्सक्रीट कर देती है। और अगर आप देखेंगे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में सबसे ज्यादा जो मिसयूज एक तरीके से है वो विटामिन का है। हम इन एंड आउट विटामिन खाते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है, मतलब मे बी वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, लेकिन हम कभी भी अपने लेवल्स चेक नहीं करते। और इसमें एक एग्जांपल विटामिन डी का है। विटामिन डी की तो टॉक्सिसिटी भी होती है। आप मैक्सिमम लोग क्या है कि अभी आजकल विटामिन डी खाते रहते हैं बिना अपना लेवल टेस्ट किए बिना, तो उसमें कई बार टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसका कोई रैशनल नहीं है एक्चुअली कि आप एंटीबायोटिक के साथ में। हाँ 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 जी। आजकल कोविड के टाइम पे ये एक्चुअली जो फॉरवर्ड्स भी आते हैं व्हाट्सएप एंड फेसबुक, इन पे भी बहुत आता है विटामिन डी खाइए। I mean, this would make you COVID resistant or something of that kind. But सब खा रहे हैं विटामिन डी, हर हफ्ते एक सैश हर बंदा खा रहा है विदाउट इवन रियलाइजिंग कि अपने उसमें उसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी के ऑलरेडी विटामिन लेवल बहुत हाई है, विटामिन डी लेवल्स बहुत हाई हैं, और वो अगर उसको टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग दीज एजेंट्स आल्सो। दे मे सीम वेरी हार्मलेस कि विटामिन हैं, चलिए खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वी नीड टू बी कॉशियस। Yeah, thank you, sir. कोविड का टाइम, next thing, कोविड का टाइम पेंडेमिक के साथ साथ पेंडेमिक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जस्ट ऑन लाइटर नोट, सो वी गेट मेनी इंफॉर्मेशन। और रोज एक बहुत बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ आ जाता है, वो कहीं ना कहीं हिट करता है एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट। सो इट्स लाइक दैट दीस डेज। ट्रू सर। एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो आपने समझाया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन। Could you talk about a bit about what are the superbugs and how can we recover from such infections? I mean, right. Dr. Belwal and Dr. Tyagi. मेरे ख्याल से शांतनु will take up this question because ICU में हम लोग superbugs बहुत कॉमन है। ICU में I was about to, yes. No, sorry. So एंटीबायोटिक सुपरबग्स की जहाँ तक बात की जाए तो ये सुपरबग शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग तब से है जब से एक एनडीएम या न्यू दिल्ली मेटालोप्रोटीनेजेस का सुपरबग के बारे में डिस्कवरी हुई थी आज से कुछ साल पहले, आई बिलीव
9 और 10 के आसपास तक का. So again, these superbugs are those resistant bacteria which are almost resistant to all kind of antibiotic known to humankind, known to us specifically. So there are different kind of bacteria like E. coli, Klebsiella. I'm not going to details of those, but yes, by some specific mechanism like genetic transformation, conjugation, and these bacteria have learned very hard to live with those antibiotics, and practically we do not have any kind of antibiotic to cure to treat those infections. सिंपल इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई जैसी चीजें आजकल कुछ ऐसे बैक्टीरिया से होने लगी हैं जिसके लिए जो भी ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक हमारे पास अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में इस वक्त पर, उसमें से रादर 1 या 2 ही एंटीबायोटिक बचती हैं जो कि उनके अगेंस्ट एक्टिव रहती हैं. सो दीज आर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सुपरबग्स, एंड इसमें लगभग सारे जो कॉमन बैक्टीरियाज हैं दे हैव गेन्ड रेजिस्टेंस for antibiotics, and we also encounter such kind of infection in our ICU. हमारे ICU में भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनको कि ऐसे सुपरबग से इन्फेक्शन होता है. These superbugs are not separate bugs. They are not some kind of different kind of bacteria जो कि अचानक से आ गया है. वही बैक्टीरिया जो हमारे साथ बहुत टाइम से चल रहे हैं या बहुत टाइम से इन्फेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन काइंड को, और now they have become resistant to available antibiotics on earth right now. So yeah, I mean there are some antibiotics which are developed in West and not available to us, or they are in process of availability. But these are the infections which are caused by those bacteria which has learned hard for all kind of antibiotics, and they are really tough to kill, and they are associated with high mortality. Patient की cure rate बहुत कम हो जाता है, expense बहुत ज़्यादा हो जाता है, toxic effects बहुत आते हैं. So ये एक लिस्ट बता सकता हूँ मैं थोड़ा सा सुपरबग्स के बारे में. आईसीयू में भी डेवलप होते हैं ये सुपरबग्स? यस, सुपरबग्स वहीं डेवलप होंगे. यस बिल्कुल, सुपरबग वहीं डेवलप होंगे जहां पर एंटीबायोटिक का यूज सबसे ज्यादा होगा, और वहीं पर डेवलप होंगे जहां पर की एंटीबायोटिक कंट्रोल पॉलिसी. इसमें ये सुपरबग का डेवलपमेंट को ना कोई एक डिपार्टमेंट से या कोई एक कंट्री से या कोई एक कम्युनिटी से लिंक नहीं किया जा सकता है. ये एक काइंड ऑफ पूरा मतलब कम्युनिटी, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस, इन सब पे डिपेंड करता है. लाइक अगर मेरे आईसीयू में सुपरबग है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे आईसीयू में डेवलप हुआ है वो. इट्स लाइक कम्युनिटी से पेशेंट एंटीबायोटिक खाता हुआ आया, हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, कल्चर कहीं पर हुआ नहीं, इनअप्रोप्रिएटली एंटीबायोटिक मिली उसको, और अल्टीमेटली पेशेंट लैंडेड विद अस, वी स्टार्टेड सम एंटीबायोटिक, एंड नाउ the bacteria has resistant for all antibiotics available to us. So this is development of superbug. So और ये superbug ऐसा ही नहीं सिर्फ आईसीयू से रिलेटेड है. Now मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जो डायरेक्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं without any antibiotic exposure anywhere, and now they have got those bacteria which are resistant to antibiotics. मुझे एक बहुत अगर if we have time, if time permits, can I have a small story which have touched me? अगर मेरे पास टाइम है तो क्या मैं बता सकता हूँ? So आज से करीब 2-3 साल पहले there was a young boy who came to us. He was about 16-17 year of age. करीब 16-17 साल का लड़का था वो, और बाहर स्पोर्ट इंजरी हुई उसको, खेलते हुए अपने कलीग्स के साथ उसको चोट लगी. वो एक हॉस्पिटल गया था जहां पर वो हार्डली 24 आवर एडमिटेड रहा, और ऐसा कोई बहुत हाई एंटीबायोटिक यूज नहीं रहा उसको वहां पर. ही हैज अ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, उसको बैक बोन में एक जगह पर एक इन्फेक्शन फोकस हुआ, और उसके लिए उसको एंटीबायोटिक मिला जो कि राइट था, मतलब इट वाज रिक्वायर्ड, वो देना चाहिए था उसको. बाय द टाइम ही केम टू अस, ही हैड बहुत उसको हाई फीवर रहा, उसको मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन हो चुका था, उस समय पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका था. इट वाज स्ट्रेंज टू अस कि आल्सो कि 48 घंटे के अंदर कोई इन्फेक्शन इतना सीवियर बोन से होते हुए लंग्स में और पूरी बॉडी में पूरी तरह से फैल गया था. उसको आईसीयू में लिया गया, हमने उसको कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करी, ब्लड कल्चर भेजे, एंड वी स्टार्टेड ऑन बेसिक एंटीबायोटिक जो कि हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है. वी डू नॉट स्टार्ट हायर एंटीबायोटिक जब तक कि डाउट ना हो, बट उसकी कंडीशन 24 आवर में और डिटोरिएट हुई. So we send the cultures as usually. Before starting any antibiotic, we send cultures for it. In 48 hours, when the cultures were back, we were very surprised to know that it was resistant to almost all antibiotics. There was only 1 or 2 antibiotics left with it. This is called
multi resistant organism. This was multi resistant staph aureus, just for technicalities. And we have only there are two group of drug which were available and we gave to him. तो इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसको उतनी ड्यूरेशन तक जब तक हमने सस्पेक्ट ही नहीं किया था, we could not give him exact treatment for 48 hours. His condition deteriorated. The treatment expenses go high क्योंकि बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक थी वो, उसके कॉम्प्लिकेशंस काफी रहे बहुत टाइम तक. और अल्टीमेटली जो हमने सब स्टडी किया तो वी फाइंड कि दिस वाज अ कम्युनिटी एक्वायर्ड मल्टी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन. मतलब जो इन्फेक्शन आज जो हमारे हॉस्पिटल में है, ये जो आज हेल्थ केयर वर्कर में है किसी में, या हॉस्पिटल से पेशेंट जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें है, वो इन्फेक्शन सिर्फ उसी से लिमिट होकर नहीं रह जाएगा, वो इन्फेक्शन पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा. That infection will go into it will contaminate the environment, and a patient can get anybody can get, and there are those bacteria from the environment itself. Like जो NDM था, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? It was found in water. It was found in routine surveillance of water, कि वहां पर पता चला ये तो ऐसा बैक्टीरिया आया जो सुपर बग है. It was not found in a patient, but later on जब उसको सोर्स आइडेंटिफिकेशन पता लगा तो it was found in a hospital. So it is not a problem of healthcare, it is a problem of community, it is a problem of mankind as per se. Because अगर हम इसको अभी पहचानेंगे और ट्रीट नहीं करेंगे तो हम आज से पहले करीब जैसे 19 छोटे से स्कार से डेथ हो जाया करती थी, हो सकता है आज से 20-50 साल बाद हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं रहेंगे तो हो सकता है हम ऐसे ही राह में भी पहुंच सकते हैं. So we have to seriously think about it. That's it. So तो इनसे रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है सुपर बग से, इन इन्फेक्शन से? देखिए सुपर बग्स का शांतनु ने बताया कि देखिए एंटीबायोटिक्स आर लिमिटेड. सी नाउ इफ वी हैव अ बैक्टीरिया, अगर हमारा एक बैक्टीरिया आ गया जो कि अब सारी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है उसको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. और ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करता रहता है, और यूजुअली पेशेंट क्या होते हैं, वो फिर दे गो इनटू सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के उसमें. तो अभी आज की तारीख में इस तरह के केसेस जो हैं कम है मैं कहूँगा. बट एक समय था जिस वक्त मैं अगर आज से 8-10 साल पहले बात करूं तो इस तरह के केसेस हमें कभी देखने के लिए नहीं मिलते थे. बट अभी वी आर सरप्राइज टू सी. और इसमें देखिए इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें एक वो नहीं है. और एक्चुअल में क्या है कि हम लोग एक चीज बड़ी फेस करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो हॉस्पिटल में तो वो सबको बता देंगे कि भाई ये तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सबको पता होनी जरूरी है. देखिए सबसे पहले एज ए कम्युनिटी, मैं और आप, जैसे आप कह रहे हो कि आप एकदम एंटीबायोटिक खा लेते हो, तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर टेकिंग दैट एंटीबायोटिक. हाँ, उसके बाद में अगर हम अगर हमारे कंट्री में अगर हम गाँव में जाएं या कस्बों में जाएं, या इवन अगर हम अपने देहरादून के शहर में भी देखें तो क्वेकरी बहुत है. ठीक है, लोग बैठे हैं जिनको की कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर ट्रीटिंग पेशेंट्स. एंड आई विल टेल, यस, एंड माइंड यू, आई विल टेल यू नाउ दे आर यूजिंग हायर एंड एंटीबायोटिक्स लाइक एनीथिंग. ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक्स हम शायद अपने आईसीयू में फर्स्ट टाइम में भी स्टार्ट नहीं करते हैं, वो मरीज जब उनके पास फर्स्ट टाइम जाता है तो उसको वो ये बताकर कि हम तुम्हें बहुत ही बढ़िया दवा से ट्रीट कर रहे हैं, और वो उन एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं. एंड द ड्रग कंपनीज, दे आर सेलिंग दोज एंटीबायोटिक्स टू दीज पीपल. तो दिस इज अ वेरी मतलब डेंजरस थिंग्स व्हिच आर सेटिंग इन, एंड नो वन इज, यस, उसको देखिए, इसको ये हमारे हाथ में नहीं है. This is government has to do something about it. Basically, government has to do something about it. And another thing is, I'll try to मैं एक चीज और बताता हूँ, आप सरप्राइज होगे जानकर कि मैं कहता हूँ कि आप एंटीबायोटिक नहीं ले रहे. ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं तो एंटीबायोटिक मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप दूध पी रहे हो, तो देयर इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें कैटल्स में. ठीक है, आपको पता ही नहीं है. तो दोज एंटीबायोटिक्स आर सिक्रेटेड इन मिल्क. तो आप जो दूध कंज्यूम कर रहे हो या वो सब चीजें कंज्यूम कर रहे हो, उसमें वो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल रहती हैं बहुत बार. तो उसको कौन देखेगा? फिर आप पोल्ट्री में जाइए, वहां पर जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है एंटीबायोटिक्स का, उसको कौन देखेगा?
तो देर आर, मतलब दिस इज अ मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम इसके लिए। ट्रू ट्रू जी सर, बट जी। उस चीज का इलाज क्या है? नहीं, इलाज उसका तो तो देखिए, इसको इलाज तो कोई डॉक्टर या नहीं नहीं कर नहीं नहीं सकता है। नहीं, सो ट्रू। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होता है अभी कि इसमें सर ब्लेम गेम, हम्म, इसमें इसमें तो ब्लेम गेम गवर्नमेंट है। नहीं है, समझ। हाँ, नहीं नहीं, गवर्नमेंट, यस। मैं यस यस, देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर्स आर फेस इन सोसाइटी, तो एवरीबडी सेज कि भाई आप कैसे हो गया, इन्फेक्शन कैसे हो गया, ये रेजिस्टेंट क्यों हो गया, आप हमें बताइए। ट्रू। बट एक्चुअली इसको अकेले हम लोग नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट के पाले में है बॉल इसके लिए। और जैसे आज की डेट में अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे सिडेटिव्स हैं, आज की डेट में आप किसी केमिस्ट के पास अगर आप जाके बोलें कि मुझे एक पत्ता एल्प्रेक्स का दे दीजिए, वो आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि आप मेरे को पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, मैं तब आपको दूंगा, आपको ऐसे नहीं दे सकते। हाँ 650 दे देगा सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बट क्योंकि अब वो एल्प्रेक्स क्यों नहीं दे रहा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां लेजिस्लेशन ले आए हैं, गवर्नमेंट आप नहीं बेच बता सकते दिया। बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो व्हाई नॉट ऑन एंटीबायोटिक्स, व्हाई नॉट ऑन Why not? एंटीबायोटिक्स। This is what I was trying to tell you कि why not antibiotics? यस यस अभी यस मैं यस, आज व्हाई नॉट ऑन जाके एंटीबायोटिक्स। ऑगमेंटिन 650 ले लेती हूँ या एजेक्स ले हाँ लेती हूँ, मुझे यस क्यों यस, दी जाती है? हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल। ये तो कहीं जैसे, ना कहीं केमिस्ट पे, यस, ये जो हमारे फार्मेसीज हैं, इन पे भी कुछ लगना चाहिए ना, हाँ हाँ बिकॉज हाँ यही लोग बेच रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं। सर हाँ कई बार ऐसे होता है, आई मीन जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन, कि हम लोग डॉक्टर की फी, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट ऑल्सो, एक यस फीस यस यस। बचाने के लिए, बिकॉज दे थिंक कि इसके बाद टेस्ट होंगे, ये होगा, सो वी जस्ट वांट टू कट शॉर्ट दैट प्रोसीजर। हम लोग सीधा ऑफ द काउंटर केमिस्ट पे जाते हैं, जो आजकल आधे से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, बन गए हैं, एंड वो लोग बोलेंगे ये लो एजेक्स। सर माई एजेक्स थिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ केमिस्ट ओनली, मुझे एकदम आराम मिला, और अब जैसे ही मेरे गले में दर्द होता है मैं एजेक्स खा लेती हूँ, यू नो, नहीं देखिए, ऑगमेंटिन अब हाँ, नहीं नहीं, तो अभी 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 मतलब जैसे, कहीं ना कहीं करेक्ट। हाँ अभी अभी जैसे एक अभी सवाल भी आ रहा है कि कॉमन कोल्ड के लिए फिर क्या करें। मैंने आपको पहले भी बताया क्या था, करें कॉमन कोल्ड के लिए आप आप? कुछ नहीं करिए, आप स्टीम लीजिए, आप गार्गल्स करिए, अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप प्रोसिन लीजिए, आप एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी नहीं लीजिए। I mean, it should be a very strict rule, a norm now, that antibiotics like Alprex and drugs इन इस तरह के उसमें आना चाहिए, और ऑफ द काउंटर नहीं बिकना चाहिए बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इवन इन कहीं जाके हॉस्पिटल्स इसका देखिए, यूज, इवन इवन आई वुड से इन हॉस्पिटल्स, जैसे हम मैक्स हॉस्पिटल में वी हम लोग जो है अभी हमारा, देर इज अ प्रोसेस इन हॉस्पिटल, इट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। तो वहां पर आप कोई एंटीबायोटिक बिना रीजन दिए आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते कि पेशेंट आया और हमने सीधा ये एंटीबायोटिक दे दिया। अगर इस तरह, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स की एक लिस्ट रहती है, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं तो आपको उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आ जाता, जैसे डॉक्टर शांतनु ने अभी जो केस भी बताया, तो व्हेन वी गॉट द प्रूफ फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी लैब, देन हमने कहा ठीक है अब एंटीबायोटिक्स चेंज करते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड माइक्रोबायोलॉजी बैकअप basically in all hospitals, and they should use it frequently rather than using indiscriminately antibiotic कि अब ठीक नहीं हुआ तो अब ये लगा देते हैं, अब ठीक नहीं हुआ तो ये लगा देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज और देखी जाती है, जैसे सपोज अ पेशेंट इज एडमिटेड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, हम लोग हॉस्पिटल में हैं और मतलब डॉक्टर्स के हाथों में, सो वी आर गिवन प्रॉपर प्रिस्क्राइब डोजेजेस, बट इन केस अगर हमें कोई एंटीबायोटिक, लाइटर एंटीबायोटिक दिया जाता है कभी घर में, सो सपोज मैं ठीक हो गई 2 दिन बाद, एंड द एंटीबायोटिक इज फॉर 5 days, राइट, मेरे को 3 दिन में मैं आई एम ओके, एंड आई मिस इट समहाउ, मेरे को लगता है अब मैं ठीक हूँ, चलो छोड़ो 2 दिन और दवाई क्या खानी, उल्टा हमारे इफेक्ट करता है, फालतू इफेक्ट होगा। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? आई मीन शुड वी टेक अ प्रॉपर प्रिस्क्राइब कोर्स, और अगर बीच में मिस हो जाता है, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए एंटीबायोटिक अगर आपको लेना है, देखिए मैं कहता हूं कि आपने जो है ये एस्टेब्लिश किया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक लेना है, तो इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल चीज से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने उसको यूज तो किया लेकिन प्रॉपर डोज में यूज नहीं किया। अब अगर आपने प्रॉपर डोजेज नहीं लिया, प्रॉपर टाइम के लिए नहीं लिया, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मारती कैसे है कि ड्रग लेवल्स हमारे ब्लड में डेवलप होते हैं और वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो आपने एक गोली लेकर के छोड़ दिया तो बैक्टीरिया के ऊपर हल्का सा असर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो दवा जो है आपने नहीं ली,
तो अब बैक्टीरिया को तो आपने हिंट दे दिया कि आप उसको किस चीज से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया विल ट्राई टू डेवलप कि मैं अब इससे बचूं। तो जब भी आप ऐसे बीच में दवाइयां छोड़ते हो या कम डोज में लेते हो, तो रेजिस्टेंस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और इसी वजह से जो आज की डेट में हमारे कंट्री में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, उसका रीजन यही है, क्योंकि लोग बीच में दवाइयां छोड़ देते हैं या आधी डोज खाएंगे, 1 महीना खाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो दिस इज मतलब इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। So it was very well explained, sir. Actually ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो रही हैं, मेरी भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा खाती हूँ दवाइयाँ ऑफ द काउंटर। सो थैंक यू सो मच। बट सर, जैसे एंटीबायोटिक ऐसे बीच में छोड़ दिया, फाइन, बट एक क्या टाइम इनका भी होता है, स्टिपुलेटेड टाइम होता है? अगर आज मैंने 12 बजे अपनी डोज खाई है तो कल भी 12 बजे ही खाना है? आई मीन दिस इज अ मिथ और नहीं, दिस इज अ फैक्ट। अगर कोई आपको डोजेस दी गई है, मान लीजिए एक एंटीबायोटिक है जिसको दिन में 2 बार खाना है, तो वो आपका दैट मीन्स कि वो ना, मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन एंटीबायोटिक्स की एक हाफ लाइफ होती है, उसका आपके ब्लड में लेवल्स होते हैं। तो मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक सुबह और शाम खानी है, तो उसका जो ब्लड लेवल है 12 घंटे के बाद गिरना शुरू हो रहा है। तो आपने जब दूसरी ली तो वो ब्लड लेवल उसका फिर से मेंटेन हो गया। तो यू हैव टू स्टिक टू द प्रॉपर डोसेज एंड टाइमिंग्स एंड फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सर, इट वाज रियली रियली हेल्पफुल। मेरे लिए तो था, आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज्यादा था ये हेल्पफुल। अच्छा सर, एक चीज और बताएंगे आप प्लीज, ये जो एज ग्रुप्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के, सपोज एक 50 ईयर ओल्ड के लिए और एक 5 साल या 10 साल या 15 साल के बच्चे के लिए, ये सब क्या एक से ही होते हैं एंटीबायोटिक्स? नहीं, एंटीबायोटिक्स तो एक ही रहते हैं, लेकिन उनके डोजेस जो है वो एज के हिसाब से, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो उसका डोजेस कम हो जाते हैं, लेकिन एडल्ट एज ग्रुप में तो सेम ही रहते हैं बेसिकली। बट हाँ, कई बार आपको अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं, या किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम है, या कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम है जहां पर कि एंटीबायोटिक्स को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई डिजीज है, हार्ट डिजीज है, आप कुछ हार्ट के ड्रग्स लेते हैं, तो आप गए, आपने ओवर द काउंटर एक एंटीबायोटिक ले लिया। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इन ड्रग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब ये एंटीबायोटिक इन दवाइयों के साथ लेनी थी कि नहीं लेनी थी, आपको ये नहीं पता। दूसरा, कई बार डोज मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि किडनी पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती प्रॉपरली, तो आपको एंटीबायोटिक के डोज है जो रिड्यूस करने होते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है इसमें ऐसी स्थिति में कंसल्ट करना, और अपने आप से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ऐसे खरीद के बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बेसिकली हमारा सारा डिस्कशन जो घूम फिर के यही आ रहा है दैट ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स एक्चुअली इट्स अ बिग नो नो फॉर एवरीबॉडी। यस। अच्छा सर, एक्चुअली इसमें ये भी होता है ना, लोग सोचते हैं कि ठीक है मेरे को पूरी गोली बोली है डॉक्टर जी ने, तो बच्चे को आधी दे दो, मतलब पीपल डू दैट। बच्चों में भी मैं बता, आप एक चीज समझिए, अगर आप छोटे बच्चों में इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक यूज करते हैं, नाउ देयर आर स्टडीज दैट दीज चिल्ड्रन कैन डेवलप एस्थमा लेटर इन लाइफ। ओके, तो और जितने भी, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी नजला, जुकाम, खांसी ये सब होते हैं। अच्छा, बच्चों में क्या होता है कि मदर्स बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, कहते हैं भैया बच्चा ठीक नहीं हो रहा, नहीं आप दो एंटीबायोटिक। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, शी आल्सो यूज्ड टू टेल, मैं उनको कहता था, मैंने कहा भाई नहीं, ये वायरल है, इसमें कोई देने की जरूरत नहीं है। बट आप बच्चों के केयर में आप वो ओवर प्रोटेक्टिव और वो हो जाते हो। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक तरीके से इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में उनको हार्म कर रहे हो आप, ठीक है? तो आप उसको, डायरिया है, आप अब डायरिया को देख लीजिए, डायरिया मैक्सिमम केसेस में बच्चों में इट इज वायरल डायरिया, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है। बट हम जैसे ही अभी आप किसी को भी देखोगे, हाँ भाई सब क्या करेंगे, एक ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड खा लेंगे, ओफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल खा लेंगे कि डायरिया है। लेकिन मेनी अ टाइम्स ये सिर्फ वायरल डायरियाज होते हैं, और इसमें आप सिर्फ कुछ प्रोबायोटिक्स वगैरह लेंगे तो उनसे ये ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। बट दे आर बीइंग यूज्ड इंडिस्क्रिमिनेटली। जैसे एडल्ट में डायरिया होता है, 2 दिन में नहीं ठीक होता, तो यही बोला जाता है एंटीबायोटिक दे दो, दिस सीम्स लाइक अ स्टमक इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन से हमें पता है कि पहले हमें 3 महीने पहले हमने ये दवाई खाई थी, व्हाई गो टू अ डॉक्टर, गो टू द केमिस्ट एंड बाय। बिल्कुल।
तो बट स्टमक इन्फेक्शन क्या लेना चाहिए एंटीबायोटिक? पार्डन? स्टमक इन्फेक्शंस, सपोज डायरिया 3 दिन में नहीं ठीक हो रहा है, तो डू वी एक्चुअली नीड अ एंटीबायोटिक? देखिए उसमें ना देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। वो एक बार जब तक आप हिस्ट्री और पूरा विदाउट कंसल्टेशन आप उसमें ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज, डायरिया का एक कारण नहीं हो सकता, देयर कैन बी नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज ऑल्सो। सी, तो आप ना हर चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो ही नहीं रहे थे, कोई और बीमारी थी, लेकिन हम खाए जा रहे हैं एंटीबायोटिक। इसमें मैं, क्योंकि बिकॉज मैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे एस्थमा के पेशेंट्स हैं, तो वो लोग एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। अब एस्थमा कभी एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है एंटीबायोटिक्स में। व्हेन दे कम टू मी ऑन ओपीडी, दे विल टेल कि सर हमने पहले एजिथ्रोमाइसिन का एक कोर्स किया था, उसके बाद हमने फिर ऑगमेंटिन का एक कोर्स कर लिया, फिर हम एक और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें ये सेफ्टम दी थी तो हमने ये भी खा लिया, लेकिन हमें आराम नहीं आया। बट अल्टीमेटली आप जब उनको बात करते हो, उनके सिम्टम्स देखते हो, तो भाई सिम्टम्स तो एस्थमा के हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आपने कोई इनहेलर इस्तेमाल किया? नहीं सर, इनहेलर तो इस्तेमाल नहीं किया। तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपको इसलिए एक्चुअली ना देखिए कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी प्रॉब्लम इन्फेक्शन से हो रही है कि एलर्जिक है कि क्या है। तो डॉक्टर नीड टू डिसाइड कि आपको लेना क्या है बेसिकली। ट्रू, जनरली ऐसा ही होता है सर, लोगों को एंटीबायोटिक हल्की लगती है दैन इनहेलर्स। उनको लगता है इनहेलर बहुत स्ट्रांग होते हैं तो एंटीबायोटिक ले लीजिए। जनरली दैट्स अ कॉमन टेक। बट एंटीबायोटिक्स आर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा ना। Yes, yes, they are not. Sister, what is the difference between a bacterial infection and viral infection? जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाए हमें एंटीबायोटिक लेनी है, जस्ट फॉर नॉलेज से क्या फर्क होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पहला डिफरेंस तो ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया से है, वायरल इन्फेक्शन वायरस से है। बट डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज वेरी अर्ली कि आपको क्या हुआ। वायरल इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड और फ्लू की बात करें तो the viral infection can have anywhere in the body. Like normal course में बहुत common रहता है कि like जब seasonal changes होते हैं तो उस समय पर you have sore throat, running nose, and throat irritation, throat pain. So these are common symptoms of viral infection. अब कैसे इसको differentiate करें bacterial infection से? It's not very easy task, however, but कुछ चीजें हैं जैसे कि viral infection का जो normal course है करीब 3 to 5, almost about a week, up to 5 days रहता ही रहता है वो, and it gets treated with its own. You don't need antivirals until unless अगर ये बहुत life threatening infection है, आपको antiviral लेने की जरूरत नहीं है। और वायरल के लिए ट्रीटमेंट भी बहुत आसान नहीं रहता, इट्स डिफिकल्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स ट्रीटेड ऑन इट्स ओन, अपने आप ही ठीक हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब होगा? अगर इस समय पर बॉडी इम्यूनिटी कम है, या इस समय पर न्यूट्रिशन पार्ट डाउन हो गया है, या पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो विद जैसे कि 5 डेज के बाद भी अगर वायरल फीवर में आराम नहीं पड़ रहा है, अगर फीवर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर स्प्यूटम प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हालांकि ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी वायरस से भी हो सकती है, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं, जो कि बाकी जगह हो भी रहा है। बट अगर इस कोविड को छोड़ दिया जाए तो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इट्स नॉट कि नहीं होते हैं। तो सोर थ्रोट अगर कुछ ज्यादा खिंच गया है तो हो सकता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो। तो इसको जैसे स्प्यूटम आने लग गया है, वायरल इन्फेक्शन यूजुअली स्प्यूटम या येलो एक्सपेक्टोरेशन जो पीला बलगम जैसा इस तरह की चीजें नहीं प्रोड्यूस करता है। बट हाँ, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर हो गया तो हो सकता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन सिम्टम हों। फीवर जो कि डिस्प्रपोर्शनेट हो, जो कि बहुत ज्यादा आने लग गया है, शिवरिंग के साथ आ रहा है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह जैसे अभी आपने डायरिया की बात करी, ऑलमोस्ट 90 to 95% डायरिया आर वायरल कॉज, मोर सो इन चिल्ड्रंस में डायरिया इज मोस्टली बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। एडल्ट्स में भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बट हाँ, उस समय पर अगर प्रॉपर इनटेक नहीं लिया, प्रॉपर तरीके से अगर हाइड्रेशन नहीं मेंटेन किया, न्यूट्रिशन पार्ट अच्छा नहीं रहा, या कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि किसी भी वायरस से इम्यूनिटी कम हो जाएगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाएंगे,
तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं डायरिया से आपने कुछ दिन रखा, 3 से 5 दिन तक ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं हुआ, फीवर आने लगा, या जो द अमाउंट ऑफ जो जो मोशन है वो काफी ज्यादा स्मेलिंग और लार्ज अमाउंट होने लगा, इट कैन बी साइन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये डायग्नोज करना कि ये वायरल है या बैक्टीरियल हो चुका है, आई थिंक यहाँ पर एक्सपर्टीज की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो रादर देन ओवर काउंटर मेडिकेशन लेने के 3 से 5 डेज तक अगर वायरल इन्फेक्शन नहीं सबसाइड हो रहा है, तो देन या यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर गेटिंग एन एंटीबायोटिक। Thank you, Dr. Belwal. It was well explained. And आप प्लीज दोनों एक मैसेज दीजिए सब लोगों को about antibiotics, its uses, and I mean just a message, parting message, I should say, ताकि लोगों को समझ में आए. Over the counter antibiotics is a big no. So coming from a doctor, actually, yes. So Dr. Tyagi. डॉक्टर त्यागी देंगे पहले मैसेजेस, पहले वो देंगे. देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पिछले कई सालों से, ऐसा नहीं कि मुझे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं होते, हर साल होते हैं, 2-3 बार होते हैं, और मैं पेशेंट्स के कांटेक्ट में भी आता हूँ, बट मैं कभी एंटीबायोटिक यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो एंटीबायोटिक का जो मिसयूज है, मेरे ख्याल से आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीद कर ऐसे ना खाएं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हो रहा है आपको उसका, वो अब आपको जब नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि हम जो एंटीबायोटिक दें वो काम ना करें, क्योंकि आपने पहले जो एंटीबायोटिक्स लिए हुए थे उनकी वजह से आपके बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं। दूसरी चीज, अब ये इसी के लेवल पे है कि अब इसको, मतलब ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसमें अनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होना चाहिए, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट एक ऐसा सवाल भी आया था कि वेस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं, अगर आप यूएस में जाएंगे और आप वहां पर कोई एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर लेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर आप वहां ओपीडी पर भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन से मोस्ट, आप चाहे कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए लेकिन आपको एंटीबायोटिक वहां पर नहीं मिल पाएगी, बिकॉज दे रेगुलेटेड। तो ये बहुत जरूरी है करना। और दूसरा, और इसमें बहुत जरूरी है कि जो गांव में क्वैक्स और वो सब जो एक इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, वो किसी ना किसी तरह से हम रोके, नहीं तो अदरवाइज पता क्या, हम एक ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां की हमें बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे सुपर बग्स के, कि जो हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई एंटीबायोटिक उनमें काम नहीं करेगा। हाँ, तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना लें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और एक और भी चीज है इसमें ना, मतलब कि कौन सा एंटीबायोटिक किस सिचुएशन के लिए चाहिए ये आपको नहीं पता है, ना ये केमिस्ट को पता है। आप ओवर द काउंटर जाकर के कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एंटीबायोटिक हर सिचुएशन के लिए काम करेगा। तो ये आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि आपको कौन, अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है भी तो कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कितने डोज में लेनी है, कितने समय तक लेनी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। डॉक्टर बेलवाल। हाँ, तो कुछ छोटी सी मिथ्स कह लीजिए या कुछ बातें एंटीबायोटिक्स के बारे में जो जस्ट पब्लिक को बताना चाहूंगा मैं। एक तो सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया से नहीं होते, नॉट ऑल इन्फेक्शन कॉज फ्रॉम द बैक्टीरिया, एंड नॉट ऑल एंटीबायोटिक्स आर सेम। जिस एंटीबायोटिक से आपको फीवर या इन्फेक्शन क्योर हो गया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आगे भी आपको इम्प्रूव हो उससे। और जब भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए, चाहे वो केमिस्ट से हो, फार्मासिस्ट हो, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते हैं, इट शुड कम फ्रॉम अ डॉक्टर। तो तब भी आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू यू रियली नीड दैट एंटीबायोटिक? इज इट रियली इन्फेक्शियस कॉज और कैन बी नॉट इन्फेक्शियस कॉज? क्या रिस्क हो सकते हैं एंटीबायोटिक से? मतलब एज ए सिंगल पर्सन के लिए तो एटलीस्ट साइड इफेक्ट पता होने चाहिए एंटीबायोटिक्स के, जिससे कि एक रिलेक्टेंस आए एटलीस्ट। अगर कोई कहता है कि हाँ, इस ऑगमेंटिन से आपको डायरिया हो सकता है, तो हो सकता है एंटीबायोटिक यूज को थोड़ा कम करा जा सके। एंड अल्टीमेटली वी शुड थिंक अबाउट फॉर ऑन अ लार्जर एस्पेक्ट आल्सो, कि टेकिंग एंटीबायोटिक simple for not for a viral infection not going to cure you, and it's ultimately going to cause problem for you and for society large as such.
So always ask question or ask yourself first before taking an antibiotic. Is it really required, or it's going to help you, or is it risky to take it? So शायद अगर इतना भी सोचे हम एंटीबायोटिक लेने से पहले, तो मे बी एक कहीं पर एक स्टॉप हो सकता है. बस इतना ही. Brilliant message, Dr. Belwal. And I think it's a good place to end. I would like to thank Dr. Puneet Tyagi and Dr. Belwal for taking the time to come here and answer our various queries. Also, a special thank you to all the people who joined the session and Doon Citizens Online core team for making it happen. Good evening, namaskar and jai hind. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you.